علیکم. مائی نیم از زبیر یوسف اینڈ یو آر واچنگ زبیر یوسف آفیشیل. آج ہم موجود ہیں NDU یونیورسٹی میں اور یہاں ISPR کے اشتراک سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے جس میں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے جو میتھ ہیں, جو عام لوگوں کے ذہن میں ایک سوالات ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے کچھ میتھس ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں دوریاں آئی اور کس طرح سے جو ہے وہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا. سو اس حوالے سے انڈیا نے جو ہمارے ذہنوں میں ذہن سازی کی ہوئی ہے, پاکستانیوں کے ذہن میں بھی اور بنگلہ دیشیوں کے ذہن میں بھی, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریف ڈاکومنٹری جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے. 1971 ایک جنگ, 2 ملک اور کم از کم 3 بالکل مختلف کہانیاں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو 50 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی تاریخ کی کتابوں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح سے آج بھی لڑی جا رہی ہے. دسمبر جب شروع ہوتی ہے ہمیشہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دس از ٹوائلائٹ, اٹس ناٹ مارننگ. اینڈ دس فلم لیبر آف گریٹ لو کنفرمز دیٹ سینٹیمنٹ آئی ہیو بیکاز اٹ از ویری ویری ڈسٹریسنگ ٹو واچ اینڈ ٹو ہیئر. اینڈ آئی کمپلیمنٹ عائشہ صاحبہ فار ٹیکنگ دس انیشیٹو. اٹس a very brave and very courageous effort that she has made. At the same time, I just want to submit that while it's a privilege to be on this panel, یہ جو موضوع ہے, اس موضوع کے لیے 5-7 منٹ, شاید 5-7 گھنٹے, شاید 5-7 مہینے بھی پورے نہیں, کافی نہیں. کیوں؟ Because my humble thesis is that history is the biggest mystery. ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل mystery ہے کیونکہ we don't know what is going to happen tomorrow. We don't know what's going to happen 6 hours from now. Neither do we actually know history. The more you study history, the more you realize there are other facets of history which we didn't know about. And I am a humble student of history. I am studying 1971 from so many different perspectives. And the more I read, the more I'm fascinated by the complexity of what happened in 1971. For that, you have to go back. شروع ہی سے ہندوستان کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو توڑنا ہے. شروع میں توڑنے کا تھا 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گا پاکستان. پوری کوشش کر لی. یہ معجزہ ہوا کہ ہم 24 سال تک ساتھ رہے اور کیا خوبصورت تصور تھا پاکستان. واہ واہ. ہر اور ملک دنیا کی تاریخ میں جو مذہب کی بنیاد پر بنا ہے ان سب میں آپ پائیں گے کوئی لسانیت, کوئی زبان کی یکسانیت. عرب ملک دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, انڈونیشیا دیکھ لیں, ٹرکی دیکھ لیں. پاکستان کیا انوکھا پن یہ ہے that it is the first Muslim majority nation state which was not based on ethnicity, not based on language. It was based on faith, affinity as fellow Muslims, but also respect for non-Muslims. Mr. Jinnah did not want to divide Bengal. He did not want to divide Punjab. Because he wanted large numbers of non-Muslims to also be Pakistanis. Why? Because he didn't say it, but the more I study, the more I realize. Non-Muslim Pakistanis are the original Pakistanis because it was their land. Long before Islam's message came here, Buddhists, Jains, Hindus, Zoroastrians, Christians, they are the original Pakistanis. You can't be a nation without land. Muslims came later. So Mr. Jinnah had this vision of a unique country. Thank you very much.
देखिए, 1971 की कोई एक कहानी नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप किससे पूछ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये मुल्क टूटने का एक बहुत बड़ा कौमी सान्या है, वहीं बांग्लादेश के लिए ये एक नई कौम की पैदाइश की जिद्दोजहद है। 21 जब हुआ तो हिंदुस्तान में बहुत से एनालिस्ट ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो है टू नेशन थ्योरी ये अरेबियन सी में हमने दबो दी है। ये इंडिया के एनालिस्ट, उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर्स, बहुत से लोग ये कहा करते थे। I have served in the Foreign Service of Pakistan. I lived in New Delhi 7 years as Pakistan's Deputy High Commissioner and early as First Secretary. फिर मैं ढाका में पाकिस्तान का सफीर रहा। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसी की बुनियाद पे मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि उनके हीरोज और हमारे हीरोज और वो पृथ्वी राज चौहान की बात करते हैं, वो शिवाजी मरहट्टे की बात करते हैं। जब आप उनके सामने बात करते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की या और लोगों की, गजनी की, गौरी की, तो वो उलझ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। खाने डिफरेंट हैं। अभी जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में आज, पिछले साल अगस्त से जो चीज स्टार्ट हुई है, ये टू नेशन थ्योरी ही की तो मैनिफेस्टेशन है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, कि बांग्लादेश बन गया 71 में, लेकिन उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किए रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हैं अलग, ठीक है हम पाकिस्तान से अलग हो गए हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं हैं। और अभी आप बंगाल में आप चले जाएं, वो कहा करते थे पहले भी शेख हसीना साहिबा के दौर में कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश इज ऑल्सो अ पाकिस्तान, अ स्मॉलर पाकिस्तान। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं आजकल, यू ऑल्सो हैव टू look at it from the pretext and in the perspective of history. 1971 में सिर्फ नहीं हुआ था। 1971 बंगाल में 1911 में भी हुआ था, जब बंगाल की जो सेपरेशन है या डिवीजन है उसको अंग्रेज ने एनल कर दिया था। और पाकिस्तान जो मुल्क है, ये बना तो 1947 में था, लेकिन बंगाल में पाकिस्तान बना था 1905 में भी। जब बंगाल के मुसलमानों ने कहा 1905 में कि हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग राइट्स चाहिए, तो 1905 में बंगाल की डिवीजन कर दी गई। ये 2-3 पॉइंट्स हैं नोट करने के। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो ये कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, पाकिस्तान इज ऑल्सो एन आइडिया। पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, अ फिजिकल टेरिटरी और सॉवरेन नेशन। पाकिस्तान इज एन आइडिया। Pakistan is an experimentation in Islamic statecraft for tomorrow. ये एक व्यू है, one can agree with it, one can disagree with it. Pakistan has had major successes. We are continuing, alhamdulillah. And whatever you say, whatever you're looking at today in Bangladesh, Bangladeshis look up to you. Many Bangladeshis, Pakistan and Bangladesh are Muslim brother countries.
25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ये ऑपरेशन बागियों की तरफ से बढ़ते हुए तशद्दुद और गैर बंगालियों के कत्ल के जवाब में था, और इसका मकसद सिर्फ रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले मुसल्लह अनासर और मुनहरिफ फाजियों को गैर मुसल्लह करना था। थैंक यू वेरी मच। आपने मिथ्स और रियलिटीज़ के दरमियान में मवाजना किया। परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, और हम इसको बार बार देख चुके हैं। रियलिटी नाम की कोई चीज़ जो है उसको तक़वियत नहीं मिलती। और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबेल्स, वो कहता था कि एक बड़े झूठ को इतने तवातर से बोलो और इतना लगातार बोलो कि वो सच बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान के साथ भी हुआ। अब सबसे पहले, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर उर्दू ज़बान कि जी उर्दू ज़बान जो है वो कौमी ज़बान हमारी जो है बंगाली होनी चाहिए, बंगाली भाषा होनी चाहिए, बंगला भाषा। लेकिन उस बंगला भाषा के अंदर ये बताएं कि क्या उर्दू अगर बंगाल की ज़बान नहीं थी तो क्या पंजाब की ज़बान थी, क्या खैबर पख्तूनख्वा की थी, क्या बलूचिस्तान की थी, या फिर जो है कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, या फिर सिंध की थी? तो फिर उर्दू ज़बान वो थी जो कायदे आज़म ने 2 डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर बोला था कि उर्दू हमारी ज़बान है और इसको हम इसलिए राइज कर रहे हैं ताकि जो है वो तमाम कौमियतें जो हैं वो रंग नस्ल, तुम सिंधी, पंजाबी, बंगाली, पश्तून, पठान नहीं, बल्कि तुम एक मिल्लत हो। ये नारे को, इस कायद के हुक्म को किसने रिजेक्ट किया? शेख मुजीब ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अब जो हम बात करते हैं वो ये देखते हैं कि कायद की कौम जो है आज 2 मुल्कों में रह रही है, क्योंकि शेख मुजीब का भी लीडर जो थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, कोई और नहीं। आज बांग्लादेश में भी कायद की कौम है और पाकिस्तान में भी कायद की कौम है। 2 कौमी नजरिए को डुबोने वाले खलीज बंगाल के अंदर जो कहते थे, आज उनका जो है डिप्लोमेटिक, उनका पॉलिटिकल, उनका स्ट्रेटेजिक डिफेंस और इसी तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो खलीज बंगाल में डूब। इस सारे बहरान में एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर आया, भारत। और इसकी मुदाखलत कोई अचानक रद्द अमल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था। हम बात कर रहे हैं भारत की खारिजा इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की। ये 1968 में ही बनी थी, लेकिन उसने इस बहरान में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। रॉ ने बंगाली आज़ादी की तहरीक की हिमायत के लिए एक इंतहाई मुअस्सर खुफिया ऑपरेशन चलाया और उसके एजेंट्स को काउबॉयज के नाम से जाना जाता था। तब कायदे आज़म को आप लोग कैसा समझते हैं? कायदे आज़म हमारे हीरो थे ना, हैं आज भी। तो फिर ये बताइए कि जिस आदमी ने बांग्लादेश बनाया वो उनका हीरो होना चाहिए? क्या वजह है कि आज उनकी कौम ने उन मुजस्समों को गिरा दिया? शेख मुजीब को उसकी फैमिली समेत धान मंडी के अंदर उसके घर को जो है जला दिया, कत्ल कर दिया। तमाम की तमाम रिमेन्स जो थी, उसके तमाम जो असरात थे, सब खत्म कर दिए। तो फिर आज वहाँ फिर 14 अगस्त के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के परचम बिकने वाला जो कोई मुल्क था तो वो बांग्लादेश था। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगे। ये 2 कौमी नजरिया वो डुबोएंगे, उनका बाप भी नहीं बोल सकता। आज जब वहां बांग्लादेश जो है उसने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है, आज जब वहां ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। एक हमारी डिवीजन थी जिसके 12,000 ट्रूप्स वहां मौजूद थे। 12,000 ट्रूप्स जो थे, जब वहां इंसर्जेंसी हुई, ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज किया, कोई कौम क्या करती? आप अगर होते उस टाइम पे, फौज के कमांडर होते, आप क्या करते? इंसर्जेंसी को रोकते, दहशतगर्दी को रोकते, जबकि ट्रेसेस उसके अंदर मौजूद हैं। अगरतला की साजिश की बात की, किधर पहुंची? जहां की मिट्टी थी वहीं खाक पहुंची। अगरतला से ये साजिश शुरू हुई पाकिस्तान के खिलाफ, शेख हसीना वाजिद अगरतला भाग के गई। ये है हिस्ट्री, अपनी रिपीट करती है अपने आप को। इसलिए 12,000 ट्रूप्स थे। फिर जब वहां ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ तो एयरलिफ्ट किए गए 2 और डिवीजन, वो उस टाइम के ऊपर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करते
वो वहाँ जो मामलात ख़राब हो गए थे, बिहारियों का कत्ले आम हो रहा था, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, नॉन बंगालीज के लिए मुश्किलात थी, और जो पाकिस्तानी लोग वहाँ रह रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेज और फैमिली जो रह रही थी, और पाकिस्तानी फौज के ऊपर जो घात लगाकर हमले हो रहे थे, उनको रोकते, इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। इसलिए ये सब का सब जो था ये प्रोपेगेंडा था। फिर हिंदुस्तान ने जवाब पैदा किया, वहाँ जानबूझ के जो है वो कत्ले आम करना शुरू कर दिया। मुक्ति बाहिनी जिसके 1 लाख ट्रेंड लोग थे, और ट्रेंड लोग वो थे जो भारतीय फोर्सेस के अंदर काम करते थे। जब 5000 भारतीय सोल्जर्स को मार दिया गया तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने वहां कहा कि आई वांट टू सी माय फोर्सेस मार्चिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका, और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया जंग का। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जिसके पास जो है, एक तरफ हिंदुस्तान जिसके पास 300 तैयारे मौजूद थे, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 तैयारे मौजूद थे। अब हम इस जंग के शायद सबसे मुतनाज़े पहलू पर बात करते हैं, यानी हलाकतों की तादाद। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी शदीद जज्बात को उभारता है। तो सवाल ये है कि 1971 में कितने लोग मारे गए? ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब तारीख, सियासत और कौमी शनाख्त की गहराइयों में छुपा है। जो तादाद सबसे ज़्यादा सुनने में आती है, जो बांग्लादेश का सरकारी मौक़िफ़ है, वो है 30 लाख। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं, बल्कि बांग्लादेश की कौमी शनाख्त और उसकी आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी का एक बुनियादी स्तून है। लेकिन ये तादाद आई कहाँ से? इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। BBC बंगला प्रोग्राम के साबिक डिप्टी हेड सिराज रहमान का एक बयान है कि उन्होंने शेख मुजीब को बताया था कि हलाकतों का तखमीना 3 लाख तक हो सकता है। उनके मुताबिक ये मुमकिन है कि शेख मुजीब ने बाद में एक इंटरव्यू में लाख का गलत तर्जमा मिलियन कर दिया हो, जिससे ये तादाद 3 लाख से सीधा 30 लाख हो गई। एक तरफ उनकी 3 कोर फौज थी, जिसके अंदर 2 कोर, 4 कोर और 33 कोर थी, और बाद में 2 सपोर्टिव कोर और मौजूद थी, और दूसरी तरफ हमारे टोटल 34,000 सोल्जर्स वहां मौजूद थे। इन सोल्जर्स के अंदर एक जज्बा था, क्या करते? वहां अपने लोगों को बचाते, वहां सामान रसद कोई नहीं था, सप्लाई लाइन 1000 मील दूर थी, नेवी के जो ब्लॉकेट था वो वहां कर दिया गया था, उनके पास एक एडवांस नेवी मौजूद थी, INS विक्रांत वगैरह मौजूद थे। मेरे पाकिस्तानी फौजियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। और ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी है, बंगाली बागियों और हुजूम के हाथों गैर बंगाली बहारियों और पाकिस्तानी फौज के हामियों पर भी हमले हुए, जिसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। इससे ये वाज़ेह होता है कि इंसानी अलमिये की तस्वीर कहीं ज्यादा पेचीदा थी। उन लोगों ने 2,70,000 फौज का मुकाबला किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मुक्ति बाहिनी शामिल थे। कोई मुकाबला नहीं था। 34,000 मुकाबला 3,70,75,000 लोग, और उनके पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद था। बहरहाल ये दास्तान जो है, ये बड़ी ईमान फरोशों की दास्तान है, ये बहादुरों की कहानी है। लेकिन हमने हमेशा जब भी सुना, हमने सुना भारत की ज़बानी, बंगालियों की ज़बानी, हमने कभी पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की ज़बानी नहीं सुनी। पहली बात, 1971 का बहरान गहरी सियासी, सकाफती और माशी तकसीम का नतीजा था। दूसरी, ऑपरेशन सर्च लाइट जैसे वाक़यात की कहानियाँ कौमी नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं। तीसरी, बांग्लादेश के क़याम में भारत ने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। चौथी, हलाकतों की तादाद एक बहुत गहरी और हल न होने वाली बहस है। और आखिर में ये मुतनाज़ा तारीख आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर असरअंदाज होती है। तब भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और आज भी हमारे जहनों के अंदर हमारे ही इदारों, हमारे ही लोगों, हमारी ही रियासत, हमारे ही मुल्क के खिलाफ मामला चलते हैं। वो तो बंगाल था, साथ खड़े थे, हिंदुस्तान सारी जगह से मौजूद था। मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन कर रहा है? तो फिर वो वहां बांग्लादेश को छोड़ देते? वो कभी नहीं छोड़ते। मुक्ति बाहिनी के पीछे भारत का मकरू हाथ जो था, वो हमारा कल भी दुश्मन था, वो आज भी दुश्मन है। भारत इज ए टेररिस्ट कंट्री एंड वी मस्ट फाइट इट टुगेदर। 1971 के वाक़यात ने बिलाशुबा एक नई कौम को जन्म दिया, लेकिन अपने पीछे गैर हलशुदा सवालात
اور متصادم سچائیوں کی ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔